اور میں چاہوں گا کہ اس کی فقط ایک ہی آیت، چوتھی آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، غزل غزلات کی کتاب کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ اس میں خدا کا بندہ سلیمان یوں لکھتا ہے، وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ آئیے اپنی جگہوں پر بیٹھے، خدا آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، میں چاہوں گا کہ اب آپ کا دھیان جو ہے، سب کا دھیان جو ہے وہ یہاں پر خداوند کے کلام کی طرف لگ جائے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے لیے سیکھ سکیں۔ سلیمان کی 3 کتابیں، ادھر ادھر جدھر دھیان گیا پھر میں انہوں پوچھنا جی میں 10 3 کتب، اور پھر اس کے بعد زبور بھی سلیمان نے لکھا۔ یہ 3 کتابیں جو ہیں، یعنی امثال کی کتاب، وائس کی کتاب، اور پھر غزل الغزلات کی کتاب، 3 کتابوں کو شاعرانہ زبان کے اندر یہ لکھا گیا۔ یہ شاعری ہے، اور شاعری کی زبان جو ہے، اس میں لکھنے والے بہت کچھ لکھ جاتے ہیں، اور اس شاعری کی زبان میں بڑے بھید چھپے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آج تو خدا کا بھی خانہ خراب ہو، یہ شاعری تھی۔ آج تو خدا کا بھی خانہ خراب ہو گیا۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کے نامور شاعر علامہ اقبال نے لکھا، اور اس کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج تو جب اس کی پیشی ہوئی تو چونکہ یہ بات خدا کے خلاف تھی، خدا کے خلاف لکھی گئی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے سمجھدار، پڑھے لکھے، اور بر صغیر کا ایک نام ہے علامہ اقبال، آپ نے یہ کیا مطلب بری بات کہہ دی؟ تو انہوں نے کہا جی میں اپنی جگہ پر ابھی بھی اٹل ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کی حقیقت بتائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکل کر جا رہا تھا، راستے میں مسجد آ گئی، اور مسجد کے اندر کچھ گدھے چل رہے تھے۔ گدھے جو تھے وہ مسجد کے گراؤنڈ کے اندر جیسے تو گھاس لگی ہوئی تھی، اور وہاں پر وہ گدھے جو ہیں وہ گھاس کھا رہے تھے۔ اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا آج تو خدا کا بھی خانہ خراب ہو گیا۔ تو خانہ کا مطلب گھر ہے، تو خراب کا مطلب یہاں تو انسانوں کو ہونا چاہیے تھا، تو یہاں کون چل رہے ہیں؟ گدھے چل رہے ہیں۔ تو شاعری کے اندر بڑی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ سلیمان نے 1005 گیت لکھے ہیں، اور غزل غزلات کا مطلب بھی گیتوں کا گیت ہے، اور اس کے اندر کچھ کریکٹرز ہیں جو سلیمان انہیں بیان کرتا ہے، اور تمثیلی زبان کے اندر یہ کریکٹر جو ہیں یہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب یہودیوں کے نزدیک جو غزل الغزلات کی کتاب، جس میں وہ اپنے آپ کو اور خدا کو، یہاں پر اس غزل کی کتاب کے اندر ایک محبوب ہے، ایک محبوبہ ہے، دونوں کی محبت کا یہ گیت ہے۔ محبوب کا مطلب پیارا، اور محبوبہ کا مطلب پیاری، تو یہ دو جو ہیں، دو کریکٹر جو ہیں، ان پر یہ بات وہ لکھتا ہے۔ اب یہودیوں کے نزدیک غزل کی کتاب جو ہے
وہ اسے اپنے آپ کو اور اپنے یہوہ خدا کو دیکھتے ہیں. یہوہ خدا سے پیارا یہودیوں کے نزدیک کوئی نہیں ہے. آمین. یہوہ سے ہٹ کر پیارا ان کے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور یہوہ کے قریب یہودیوں سے ہٹ کر زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس کی دلہن، کیونکہ یسایہ کے صحیفہ میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ کہا ہے کہ تمہارا خالق تمہارا شوہر ہے. تو یہودی قوم جو ہے وہ غزل الغزلات کو، اس کی کتاب کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ محبوب کی جگہ پر اپنے خدا کو اور محبوبہ کی جگہ پر اپنے آپ کو. اور اس لیے یہودی جو تھے وہ غزل کی کتاب پڑھنے کے لیے جو بالغ بچے نہیں تھے انہیں منع کر دیتے تھے. کم سے کم 30 سال کے بعد وہ غزل الغزلات کی کتاب کو پڑھنے کے لیے انہیں اجازت دیتے تھے، کیونکہ یہ ایک شاعرانہ زبان ہے اور کہیں جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہن کے اندر کوئی ایسی باتیں پڑھ کر نہ آئیں. تو اب نئے عہد نامے کے اندر نئے عہد کی کلیسیا اس غزل کی کتاب کے اندر محبوب کی جگہ پر اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتی ہے. اور کلیسیا کے نزدیک یسوع سے پیارا کوئی نہیں ہے، نہ آسمان پر نہ زمین پر. اور جس کے نزدیک، اور یہ یسوع نے کہا ہے، جو مجھ سے بڑھ کر اپنی ماں باپ بہنوں سے، بولیے ذرا کیا کرتا ہے؟ جو مجھ سے وہ میرے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہن کو اور باپ کو یا رشتہ داروں کو پیار نہیں کرنا، لیکن اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر جب تم ایسا کرتے ہو تو تم میرے لائق. تو کلیسیا کے نزدیک اس کا محبوب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. نئے عہد کی کلیسیا غزل کی کتاب کے اندر، کیونکہ اس کی تکمیل جو ہے پرانے عہد نامے کے اندر سارے کا سارا سایہ اور مثل ہے، لیکن نئے عہد نامے کے اندر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. ہاللویا. تو نئے عہد کی کلیسیا جو ہے، مسیحت کی بات میں نہیں کر رہا، میں کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کہ مسیحت کے اندر ہر شخص کلیسیا نہیں ہے، ہر شخص کلیسیا ان میں سے ہی ہوگی. کلیسیا، میں اپنے خالی ایلوہیم گاسپل چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں تمام چرچز کی بات کر رہا ہوں. تمام چرچز میں سے کلیسیا لی جائے گی اور وہ کلیسیا ہوگی. اور وہ جس بھی چرچ کے اندر ہے، جس بھی باؤنڈری کے اندر ہے، جس بھی جگہ کے اندر ہے، اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے اور خداوند کے کلام کے ساتھ مطابق چل رہا ہے، چل رہی ہے، تو اس کا دل کی دھڑکن جو ہے وہ اپنے دلہا کے لیے دھڑکتی رہتی ہے. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف کلیسیا سمجھ سکتی ہے. یہ باتیں جو باتیں لکھی گئی ہیں، لکھا ہے کیا پڑھا جی ہم نے؟ وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا. وہ کون؟ محبوب. وہ مجھے کہاں لے کر آیا؟ میں خانہ کے اندر لایا. اور لکھا ہے اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اس کی محبت کا جھنڈا. اب جب کسی کو لایا جائے تو وہ وہاں پر نہیں ہوتا، وہ کہیں اور ہوتا ہے، اور وہاں سے اسے آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں. یہاں پر آنے سے پہلے آپ اپنے گھر میں تھے. کہاں پر تھے جی؟ اور آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ یہاں پر آئے ہیں. آمین. وہ مجھے لایا، وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا. تو یہ دلہن پہلے ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟
आइए जरा देखिए इसी बाब की एक आयत पीछे सफा पढ़ लीजिए, दूसरी आयत पढ़ दीजिए जी। जैसे शोषण झाड़ियों के अंदर है जी, वैसे ही जैसे शोषण झाड़ियों के अंदर है, वैसे ही मेरी महबूबा कहां पर है? कमारियों में है। जैसे वो फूल, शोषण का फूल जो है वो झाड़ियों के अंदर है, यह फूल झाड़ियों में होता है, और महबूब जो है वो अपनी दुल्हन को इस फूल के साथ तस्वीर देता है। महबूब क्या कह रहा है जी? जैसे, सारे जरा बोलना जी, जैसे शोषण झाड़ियों में है, शोषण झाड़ियों में, झाड़ियों में। अब किसके साथ तस्वीर दे रहा है वो? किसके साथ जी? शोषण के, शोषण का फूल होता है। और कहां पर है ये? झाड़ियों में। कहां पर है? झाड़ियों में। वैसे ही मेरी महबूबा कवारियों में है, वैसे ही कवारियों में है। जरा बारीक बात है, समझिएगा। आमीन। शोषण कहां पर है? झाड़ियों में। झाड़ियों में क्या होते हैं? कांटे। और शोषण कहां पर है? झाड़ियों में। वैसे ही, जोर से बोले जी, इधर मेरी तरफ देखें। ऐसे ही मेरी महबूबा वैसे ही मेरी महबूबा कवारियों में है। कहां पर है? अब जरा मुआवजा कीजिएगा, शोषण कहां पर है? झाड़ियों में। शोषण कहां पर है जी? झाड़ियों में। कांटों में, झाड़ियों में। और महबूबा कहां पर है? समझ गए बात? कवारियां से मुराद कहां पर? बोलिए बोलिए, कहां पर? झाड़ियों में। कहां पर है जी महबूबा? कहां पर है? अब ये हालत जो है, इस हालत को जब हम जानना चाहें तो फिर हमें बागेदन में जाना पड़ेगा, जहां पर ये महबूबा, ये दुल्हन जो है, ये झाड़ियों में चली गई है, कांटों में चली गई है। दुल्हन महबूबा मींस आदम और हवा, वो पहले झाड़ियों में ना थे। झाड़ियों से मुराद जख्मी करने वाली चीजें। क्या करने वाली चीजें? जख्मी करने वाली। जरा जोर से, मेरी गल समझ आ रही है सानी दिना? हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी। किसने जख्मी किया इसे? कांटों ने। हाँ जी, कांटों ने। कांटों ने। किसे? महबूबा। हाँ जी, महबूबा मीन्स आदम हवा। हाँ जी, आदम और हवा। किसने जख्मी किया इसे? हाँ जी, आसानी से आ जाए आप। कांटे क्या थे? अबलीस। हाँ जी, कांटे क्या थे जी? बोले अबलीस। हाँ जी, गुनाह। गुनाह ने इस इंसान को इस कदर जख्मी कर दिया, जख्मी कर दिया। अब गुनाह कराने का जो पीछे बैकग्राउंड है वो इब्लीस है, जख्मी कर दिया उसने। और ये दुल्हन, ये महबूबा जो है, अब गुनाहों के अंदर फंसी हुई है। किसके अंदर है? जैसे शोषण झाड़ियों में है, वैसे ही मेरी महबूबा कवारियों में है, कमवारियों में, गुनाह में फंसी हुई दुल्हन। और महबूब जो है वो इस दुल्हन से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो इस दुल्हन से प्यार करता, और इस प्यार की खातिर लिखा है कि जब ये कांटों में
याद रखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिए। गुनाह आपका सका नहीं है। हाँ जी, गुनाह सका के सका दे। नहीं, हाँ जी, गुनाह क्या करता है? क्या करता है? जख्मी भी करता है, खराशें भी देता है, और फिर खुदा से दूर भी कर दिया। ये गुनाह का काम है। अगर किसी शख्स का खुदा के घर में आने को दिल नहीं करता, एक नींद के अंदर कोई चीज छुपी हुई है जो कहां क्या कर रही है, क्या करती है जी? गुनाह की करता है। आप गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह किसे कहते हैं? मैं ये कहता हूं, गुनाह क्या है? सादी जी गल नाल क्या? नाफरमानी, सुन के नाफरमानी, ना मनना। सुन के ये किया ना आदम ने। हाँ जी, जी, जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम भी झाड़ियों में चले जाते हैं। आदम और हवा गुनाह करने के सबब से गुनाह की जद में आए, जख्मी हालत है। गुनाह ने जख्मी कर दिया है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने एक तमसील दिया लूका की इंजील के अंदर। एक शख्स लिखा यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, यरू की तरफ जा रहा था, और रास्ते में क्या हो गया? डाकुओं ने घेर लिया और क्या किया? उसे मारा और कूटा, और क्या कर दिया? जख्मी भी कर दिया, और क्या कर दिया? अधमुआ छोड़ दिया। अधमुआ समझते थे ना? मर्यादा ना दिला, ना मर्यादे ना दिला। ये किसका काम है ऐसा करना? बोलिए, किसका काम है जी? दुश्मन का, डाकुओं का, चोर का, जो हमारी जिंदगी को आज भी डैमेज करता है, जख्मी करता है, उसका काम यही है। और कलाम इक़दस में लिखा है कि फिर एक काहिन आया। काहिन ने क्या किया? उसने उस जख्मी को देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक उसके बाद लावी आ गया, और लावी ने भी क्या किया? कतरा के चला गया। जी, ये क्या है? ये शरीयत है। शरीयत आई, लेकिन इस जख्मी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। शरीयत कतरा कर चली जाती है, इस जख्मी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन इसके बाद लिखा है एक सामरी भी आया उसी जगह पर। उसी रास्ते से एक सामरी आया जिससे यहूदी बड़ी नफरत करते थे। जिससे यहूदी क्या करते थे? सामरियों से क्या करते थे जी? ये मेरी तरफ देखिए जरा। यहूदी सामरियों से क्या करते थे जी? नफरत करते थे। सामरी आया, और कलाम इक़दस में लिखा है उसने भी उसे दूर से देखा, और देखकर वो कतरा कर चला नहीं गया। वो कतरा कर चला नहीं गया। उस जख्मी के पास गया है। हालेलुया। उस जख्मी के पास गया है। ये तस्वीर समझ रहे हैं आप? तस्वीर समझ रहे हैं जी? वो मुझे महखाना मिला और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर। हालेलुया। उसकी मोहब्बत का झंडा। यहां पर आपको इस नफरत जिसे की जाती है उसके अंदर और काहिन और लावी की तस्वीर में हमें नजर आ जाएगा। मोहब्बत कौन कर रहा है? सब बोले हालेलुया। हालेलुया। पीछे जगह नहीं है, और भाई जो है मेहरबानी करके पीछे बिल्कुल आगे आए। खुदा का कलाम आपके लिए है। बाहर कोई ना जाए, बाहर ना जाए, आगे आ जाए। आगे हो जाए, आगे हो जाए भाई। खुदा आपको बरकत दे।
भाई नदीम साहब अगे आ गए, मैं तेन जगह देना। चल बेटा यहाँ से उधर चल। हालेलुया। कहाँ पर था जी मैं? जी मैं खाने में लेके मोहब्बत किस में नजर आ रही है सावरी में, जी? सावरी में इससे क्या करते हैं लोग? लिखा वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, उसे नफरत की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये वो है जो हमसे मोहब्बत करता है। हम जो कांटों में फंसे हुए हैं, झाड़ियों में फंसे हुए हैं, ये तो हमें झाड़ियों में से निकालने के लिए लाया है। कोई इन झाड़ियों में से निकाल नहीं सका। सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए। आदम से लेकर जब आदम आया, उसके बाद औलाद बढ़ी, और वहां से लेकर कोई ऐसी हस्ती नहीं। और रूमियों के बाद पौलुस रसूल ने कहा सब ने गुनाह किया, किसे खत्म कर दिया उसने? कोई नहीं है जो इस महबूबा को, इस प्यारी को, जो कांटों में, झाड़ियों में फंसी हुई है, निकाल सके। और यहां से निकाल कर किसी जगह पर लाना है, और वो जगह मैं खाना। वो क्या है जी? मैं खाना। और कलाम इक़दस में लिखा है कि वो शख्स आया, सामरी आया, और उसने आकर उस जख्मी शख्स को देखा, हाथ भी लगाया, देखा, चेक किया, उसके सांस चल रहे थे, इसके सांस चल रहे थे। और कलाम इक़दस में लिखा है कि उसने उसे उठाकर अपने गधे पर डाला। कहां पर डाला जी? उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? उसके पास गधा भी था, और उसके पास तेल भी था, और उसके पास मैं भी थी। ये तीनों चीजें पिछले पहले आने वाले दोनों शख्सों के पास नहीं था। इनके पास ना मैं थी, ना तेल था, ना गधा था। और जो पीछे आने वाला है, इसके पास तीनों चीजें मौजूद हैं। हालेलुया। इसके पास क्या क्या है जी? सब बोलिएगा। मैं था, तेल था, और गधा भी था। तीनों चीजें मौजूद हैं। गधा इसलिए मौजूद है ताकि जख्मी को इसके ऊपर लाद दिया जाए। मीन्स मैं से मुराद, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं से मुराद मैं, खादम उस गधे की जगह पर काम करने के लिए खड़े किए गए। आमीन। किस लिए खड़े किया गया है? क्या करें? फिर इसके पास तेल है, इसके पास मैं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके पास क्या है जी? तेल है। और तेल बाइबल मुकद्दस में रूह कुदस की अलामत है। और मैं, इसके पास मैं भी है। कहां लेकर आया? मैं खाना में मुझे लेकर आया, क्योंकि उनके पास मैं नहीं है। जब मैं नहीं है तो फिर मैं खाना कैसे हो सकता है? मैं खाना से मुराद जहां पर मैं मिलती हूं। इसके पास दोनों चीजें मौजूद हैं। और कलाम इक़दस में लिखा है कि उसने गधे पर डालकर और ले जाकर और उसने बटियारे को दे दिया, और उसने कहा कि इसकी तीमारदारी कर, इसकी खबरगिरी कर। और फिर लिखा है उसने उसे 2 दिनार भी दे दिए। कितने दे दिया जी? जरा जोर से बोलिएगा। कितने दिनार? 2 दिनार। उसके पास 2 दिनार। अच्छा नहीं, लेकिन बटियारे को क्या दिया? 2 दिनार।
اور یہ 2 دینار ہمارے پاس بائبل مقدس کے دونوں آہود ہیں، یہ خادموں کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 دینار لے لو اور ان کے وسیلہ سے جو زخمی ہیں ان کو کیا کرو، ان کی جو زخمی ہیں، اور خادم کے پاس یہ کلام ہی ہے جس کے وسیلہ سے زخموں کو دھویا بھی جاتا ہے۔ جدو زخم جو ہوئے ہو نا کیوں جی تے ڈاکٹر کنج پٹی پٹی کردا والا کی کردا تے جدو صاف ہوندا ہوئے، میری طرف دیکھیے، جدو زخم صاف ہوندا ہوئے بڑا آرام ہوندا ہے، بولے درد ہوتی، ہاں جی، یہ زخم کس نے کیا ہوتا ہے؟ بولو کنے کیتا ہے؟ روحانی گل میں کرن دیا بھائی، روحانی طور پہ زخمی لوگ، گناہ زخمی کرتا ہے، کی کرتا ہے جی؟ گناہ کیا کرتا ہے؟ کس نے؟ گناہ نے زخمی کیا ہوا ہے کئی لوگوں کو۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جھوٹ کسی کو زخمی نہیں کرتا، جھوٹ زخمی نہیں کرتا، دھوکے بازی، عیب جوئی، ہاں جی، یہ کیا ہے؟ لالچ، نافرمانی، حکم عدولی سن کے کیا ہو جاتا ہے وہ شخص؟ کیا ہوتا ہے جی؟ زخمی ہو جاتا ہے۔ اور یسوع کیا کرنا چاہتا ہے؟ زخموں کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ تو صاف کرنے کے لیے 2 دینار کیا دیے ہیں جی؟ 2 دینار۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پہلا تو زخم نو صاف کی کیتا جاتا جی؟ کیا کیا جاتا ہے؟ کدے نال؟ کس کے ساتھ؟ ہاں جی، کلام استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کریں گی؟ اس خدا کے کلام کے وسیلہ سے زخم صاف بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی کلام کے وسیلہ سے مرہم پٹی ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند پھاڑتا بھی ہے اور مرہم پٹی بھی ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ ہمارے زخموں کو صاف بھی کرتا ہے۔ ہاں، درد ضرور ہوتی ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، کئی بار میں میرپور گیا تے اوتھے میں گل سنا رہا سا، میں کہ مینوں یہ دسو لگن والا سرما کنے پایا؟ کدی کالج پایا کسی؟ لگن والا سرما جی استعمال کیتا ہے؟ جدو پائیے تو کی ہوندا ہے؟ اچھی بولو، جدو اکھاں پائیے تو کی ہوندا جی؟ تے جے نہ لگے تو پھر اندر اثر نہیں آئے کوئی، پھر بیکار ہے۔ جے سرما اساں لیا سی کہ لگن والا ہے تے لیا کے گھر پایا تو لگدا ہی نہیں، بیکار ہے، پھر یہ مطلب کی ہے؟ ہاں جی، سرما تے صحیح کہنا ہوئے گا، صحیح کہنا ہوئے گا۔ اگر یہ کلام لگے نا تو پھر ٹھیک نہیں۔ اگر یہ کئی والا ہوتا ہے نا، دیکھو اے جملہ میں تمہیں عام جملہ جا میں بھی پہلے انجی کرتا ہوں، جدو میں یہ سمجھی نو قبول نہیں سی کیتا، مجھے نہیں سی پتا، تو میں بھی یہی آتا اے پادری صاحب نے مینوں لا کے سنائی ہے، اے ہن پادری صاحب مینوں سناندے نہیں بار بار، یہ مطلب سمجھ دے جی؟ دسو جی، بولے بھائی صاحب مینوں لا لا کے گلاں کر تے جے نہ لگے تے پھر لگ رہے تو پھر ٹھیک ہے، جے نہ لگے تو ٹھیک ہے، کیوں جی؟ تے جے لگے تے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کلام کے وسیلہ سے وہ ہمارے زخموں کو دھوتا بھی ہے، صاف بھی کرتا ہے، اور پھر اسی کلام کی مرہم پٹیاں بھی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اور وہ چاہتا ہے
पर लेकर चला गया। हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये मिलावट शुदा कलाम नहीं है, ये लगता है। ये क्या करता है जी? ये लगता इसलिए है कि ये असल है। ये क्या है जी? ये क्या है जी? ये असल है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा बस सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई को काम करने दो, जब वो जख्म मोकरे दे, जख्म को साफ करे, तो फिर सी करके उठ के नस ना जाए, बल्कि शुक्र करके मेरे जख्म का किसी ने फिक्र किया है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा महबूब है और हम उसकी महबूबा हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे दसो क्या जिंदगी च इक्को लगते ही रहते हैं जिंदगी इक्को बारी नहीं बार बार सट लगी हुए गोडे ते सट लगी इक्को बारी होंदा नहीं बार बार। इसका मतलब क्या है? हम यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी बार बार जख्मी होते हैं। शैतान हमें जख्मी करता है। करना ही दिया क्यों दिया ने? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या करते हैं? लफ्ज क्या करते हैं? डंडे नाल बंदा ने जो मारदा गल्ला ना बनना पर है कि नहीं? और इस तरह कहीं क्या हमने देखा? झाड़ियां। और ये झाड़ियां वो लोग भी हैं जो लोगों को अपने लफ्जों से जख्मी करते हैं। झाड़ियों का काम क्या है? फूल को क्या करना, कलीसिया को क्या करना। और आपको इस स्टोरी में क्या नजर आया? मैं आऊंगा, ये 2 दिनार मैं तुझे देकर जाता हूं और फिर मैं कैसी स्टोरी है ये? दुल्हन कहां पर है? कहां पर है जी? दुल्हन इस वक्त बटियारे के घर में, चर्च के अंदर, और यहां पर दुल्हन को इस कलाम के वसीला से मेडिसिन दी जा रही है, इस कलाम के वसीला से धोया जा रहा है, इस कलाम के वसीला से मरम्मतियां की जा रही है, इस कलाम के वसीला से जख्म में से वो सारी पीप निकाली जा रही होती है। कई बार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, हम वो दर्द महसूस करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं जी? क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके बाद हमारे लिए आराम है, इसके बाद हमारे लिए इस जमीन पर दुल्हन को उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि दुल्हन कलीसिया इस जमीन पर हर रोज जख्मी होती है, हर रोज। गल्ला नाल हुंदे ने ले भी लम्मी दुआ कर ले हुण तू एडा हाजी नवाजी बन गया, हुण तू एडी दुआइयां बैठेगा। है की ने गल्ला ने बोले? ये कौन लोग हैं? ये जख्मी करने वाले कांटे हैं। और दुल्हन आज भी कहां पर है जी? झाड़ियों में है। कहां पर है? और झाड़ियां क्या कर रही हैं? ये झाड़ियां कौन है? गैर ईमानदार लोग, गैर ईमानदार लोग। अगर आप बाइबल का मुताला करें तो मिस्र में से निकलने के बाद बनी इस्राएल कौम के दरमियान एक मिली जुली हुई भीड़ थी, और वो क्या कर रही थी? उन्हें क्या कर रही थी? कभी मूसा के खिलाफ, कभी खुदा के खिलाफ, कभी रोटी के खिलाफ, कभी पानी के खिलाफ, कभी किसी चीज के। ऐ हो रहा सी ना। तो ये ऐसे कलीसिया में भी लोग मौजूद रहेंगे और जख्मी करते रहेंगे, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि वो जिंदा है और उसका कलाम जिंदा है, जिसके वसीला से वो हमें संभालता है। और मैं खाना, आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, मैं खाना यहूदियों के नजदीक जो था, मैं खाना यहूदियों के नजदीक खैमा इज्तिमा था, जहां पर जिस खैमे के अंदर लोग खुदावंद के लिए जमा होते थे और खुदावंद की इबादत करते थे।
और नए अहद की कलीसिया के नजदीक खैमा इज्तिमा चर्च है, जगह है जिस जगह पर कलीसिया जमा होती है। और इस जगह में वो अपनी मैं का पैगाम देकर चला गया और उसने कहा कि ये शीरा, ये अंगूर का शीरा मेरा लहू है, ये मैं पीते रहना। इसके वसीला से कलीसिया इजहार करती रहे जब तक मैं और उसकी मोहब्बत का झंडा, उसकी मोहब्बत का झंडा क्या था? जरा जोर से बोले, क्या आपने उसकी मोहब्बत का झंडा देखा है? कहां पर? मोहब्बत का झंडा मोहब्बत का झंडा नहीं ना पता? पता है, मोहब्बत का झंडा पता है? ये उसकी मोहब्बत का झंडा कि हम उसकी हजूरी में मौजूद है, उसने फजल किया हुआ हम पर। मोहब्बत का झंडा, मोहब्बत का झंडा इंजील, जिसमें खुदा की मोहब्बत खुलकर सामने आएगी। आमीन। पुराने अहदनामे में आपको खुदा की मोहब्बत नजर नहीं आएगी, आपको इंजील के अंदर खुदा की मोहब्बत खुलकर नजर आएगी कि खुदा की मोहब्बत है क्या। और ये मोहब्बत सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का झंडा पूरी दुनिया के लिए है। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इंजील दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत का झंडा है। और जब तक कलीसिया इंजील के नीचे रहेगी, कामयाब रहेगी, जब तक कलीसिया इंजील को फॉलो करेगी, उसकी मोहब्बत में छुपी रहेगी, और जब वो इंजील से बाहर हो जाएंगे तो फिर खुदा की मोहब्बत से भी खारिज हो जाएंगे। तो इसलिए लाजम है कि हमें इंजील के पैगाम को अपनी जिंदगी में हमेशा रखने की जरूरत है, ताकि उसकी मोहब्बत का झंडा हम पर नजर आता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वो हमें मैं खाना में लेकर आया है और उसकी मोहब्बत का झंडा हम पर है, ताकि हम उसकी मैं, उसके लहू में शरीक हों और हमेशा इस बात का इजहार करें कि हम क्रिश्चियन हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम खुदा यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं। रोटी और मैं के लिए हम दुआ